تو اس سے توبہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ یہ میں مذاق نہیں کر رہا میرے بھائی، آخرت میں ٹھیک ٹھاک چترول ہیں زنا پر، تھوڑے چترول نہیں ہے. زنا اتنا بدترین جرم ہے کہ شادی شدہ مرد اگر زنا کرتا ہے نا، اسلام میں حکم یہ ہے کہ اسے زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے. اس سے بڑی سزا کوئی دنیا کی کسی قوم میں ہے؟ عورت اگر کرے تو بھی اور مرد اگر کرے تو بھی، بتاؤ اس سے بڑی سزا ہے؟ کچھ بھی کر لو، اسلام میں یہ سزا نہیں ہے. بھائی اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے شادی شدہ مرد یا عورت نے زنا کیا گردن اڑا دو، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا. اللہ نے کہا نہیں، گردن نہیں. ایسا عبرت کا نشان بناؤ نا کہ تیرے پاس جب حلال ذریعہ ہے اسے چھوڑ کر تو حرام کی طرف کیوں گیا ہے. زمین میں گاڑو تاکہ بھاگ نہ پائیں گے، اور پھر ان کے سروں پہ پتھر مارو. 4 گواہوں سے ثابت ہوئی کام حکومت کرے گی، پبلک نہیں کرنا شروع کر دے تو. لیکن اللہ نے حکومت کو حکم تو دیا ہے نا. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اللہ کی نظر میں زنا بہت بولو برا. اور کنوارا مرد اگر زنا کرے یا کنواری لڑکی تو اسلام نے حکم دیا ہے چوک میں کھڑے کر کے 100 کوڑے مارو. سورہ نور میں اللہ کا حکم ہے وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ. اللہ کہتے ہیں کوڑے مارتے ہوئے تمہیں ان پر رحم نہیں آنا چاہیے اللہ کا حکم جاری کرتے ہوئے. ایسا نہ ہو کہ رحم کھا کے کوڑے کم کر دو یا کوڑے بہت ہلکے مارنا شروع کرو. نہ اللہ کا حکم ہے تم نے ان کو کوڑے نہیں مارے تو کل اللہ تمہیں اس سے زیادہ کوڑے مارے گا. پھر یوسف علیہ السلام مصر میں تھے، بادشاہ کی خوبصورت بیوی نے زنا کی دعوت دی، اکیلے کمرے میں بند کمرے میں، کوئی دیکھنے والا بولو نہیں ہے، کنوارے ہیں. قرآن کہہ رہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. جوان ہے تو جب ایک بند کمرے میں ایک انتہائی خوبصورت عورت ایک کنوارے کو زنا کی دعوت دے تو مرد کا دل بھی مائل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ تو نیچرل ہے نا. تو اللہ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی خیالات آئے لیکن گناہ کے قریب نہیں، بھاگنا شروع کر دیا. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی. وہ کون ہے؟ میرا رب ہے بھائی، مجھے پالنے والا ہے، کوئی گنجائش نہیں. پھر بادشاہ کی بیوی نے دھمکی دی ہے، 2 دھمکیاں دی ہیں. دیکھ اگر تو یہ کام نہیں کرے گا تو میں الٹا الزام کس پہ لگا دوں گی؟ تجھ پہ، کہ اس نے مجھے زنا کے لیے ورغلا رہا ہے. جب عورت کسی مرد پہ الزام لگاتی ہے کہ یہ مجھے غلط نظروں سے دیکھ رہا ہے تو پبلک اس الزام کو جھوٹا قرار دیتی ہے یا سچا؟ فوراً لوگ مان لیتے ہیں. بھائی مرد تو اکثر ہوتے ہی کیا ہیں؟ ٹھرکی ہیں. مان لیتے لوگ کہ یار یہ ویسے بھی اجنبی ہیں، دوسرے ملک کے ہیں، یہاں ان کے لیے رشتوں میں مشکلات ہوں گی، اور بادشاہ کی بیوی بھی خوبصورت اور ایک ہی محل میں رہتے ہیں، تو بھائی ہو سکتا ہے کچھ معاذ اللہ نقل کفر نیت میں فطور پیدا ہو گیا. تو بادشاہ کی بیوی نے کیا کہا کہ زنا نہ کرنے میں تیری بدنامی نہیں ہے، زنا کرنے میں تیری بدنامی نہیں ہے، بدنامی نہ کرنے میں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بدکاری کرنے میں بدنامی نہیں ہے، بدکاری نہ کرنے میں بدکاری کا الزام لگے گا. اگر نہیں کیا نا تو بدکاری کا الزام لگے گا. اب تو عزت نفس کا مسئلہ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ دوسری بات یہ لا یسجنن، جب تجھ پہ بدکاری کا الزام لگے گا تو ہم صرف الزام لگا کے چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ دنیا کہے گی کہ الزام لگا دیا سزا کیوں نہیں دے رہے. اس کا مطلب یہ الزام کیا تھا؟ جھوٹا. بھائی جب الزام لگایا ہے تو پھر اپنے محل میں ایسے رکھا ہوا کیوں ہے؟ جیل میں کیوں نہیں ڈالتے؟ تو جیل میں بھی جائے گا تو. ہم اور آپ میں سے کوئی ہوتا تو شیطان ہمارے دل میں کتنے وسوسے ڈالتا کہ بھائی میں تو غیر ملک میں ہوں اور اتنی خوبصورت عورت دعوت دے رہی ہے اور میری تو مجبوری ہے اور میرے لیے تو یہاں نکاح کا انتظام بھی کیا ہے بہت مشکل ہے اور میں تو جوان بھی ہوں اور بھائی میرے اندر صحت بھی ہے. نفسیاتی ڈاکٹر ہوتا نا وہاں پہ. آج کل سب نفسیاتی ڈاکٹروں کی بات نہیں کر رہا، بہت سے نفسیاتی ڈاکٹروں نے عورتوں کو زنا کے دھندے پہ لگا دیا ہے کیونکہ ڈاکٹر صرف ڈپریشن کا علاج جانتا ہے، آخرت میں اس کے کیا چترول لگنے والے ہیں اس کمبخت کو اس کا پتا نہیں ہوتا. بہت سے لڑکوں کو مجزنی پہ لگا دیا ڈاکٹروں نے. سارے ڈاکٹر کی بات نہیں کر رہا میں. لڑکے جاتے ہیں ہماری بیوی نہیں ہے ہم ڈپریشن میں جا رہے ہیں، کہہ رہے کوئی بات نہیں ہینڈ پریکٹس کر لیا تو اس سے ریلیکس ہو جاتے ہو. چرس پینے سے بھی آدمی ریلیکس ہوتا ہے، شراب پینے سے بھی آدمی کیا ہوتا ہے. اور یہ جو ریلیکشن ہے نا ہینڈ پریکٹس سے یہ وقتی ہے، اس کے بعد دورہ اس سے ڈبل پڑتا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور زیادہ آدمی ٹینشن میں جاتا ہے، پھر یہی کرتا رہتا ہے بیٹھ کے. وہ تو اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ. ڈاکٹر ایک فیلڈ کو جانتا ہے، اخلاقیات ڈاکٹر کا شعبہ بولو نا. نہیں یہ جو ہومو سیکسولیٹی کو پوری دنیا میں عام کر دیا کیوں؟ ڈاکٹر کہتے ہیں میڈیکلی اس کا کوئی نقصان بولو نا نہیں، میڈیکلی کوئی نقصان نہیں اس لیے پوری دنیا میں لیگل. ابے میڈیکلی نقصان ہو نہ ہو مینٹلی کتنا نقصان ہے. انسان گدے گھوڑوں سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ بدتر ہو جاتا ہے. تو ہر چیز میڈیکلی نہیں ہے، اخلاقیات بھی ہیں. آپ اپنے باپ کو گھر میں رکھو اور ٹینشن اٹھاؤ، میڈیکلی یہ آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے، یہ اولڈ ہاؤس میں جمع کر کے ریلیکس ہو جاؤ. مینٹلی ہیلتھ کس میں اچھی ہوگی؟ مینٹل ہیلتھ اس میں اولڈ ہاؤس میں جمع کراؤ، ابا تو جانے تیری زندگی جانے، میں لائف کو کیا کروں گا انجوائے. تو سارے نفسیاتی ڈاکٹر کہیں گے اب آپ کے جتنے بھی دماغ کے کیمیکل ہیں بالکل کیا چل رہے ہیں؟ بیلنس. کوئی ڈپریشن کا چانس ہو رہا ہے. یہی تو کرتا ہے ابا اماں کے ساتھ. مولوی کے پاس جاؤ گے بولے گا بھائی تیرے سارے جتنے کیمیکل ہیں نا قبر میں جاتے ہی اپ اینڈ ڈاؤن ہونے والے. جب تیرے وہاں چترول لگیں گے، بوڑھے باپ کو بوڑھی ماں کو گھر میں لے آ، ٹینشن اٹھا لے، بھلے ڈپریشن سے مر جا، اس موت پر تجھے شہادت کا اجر ملے گا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. بعض عورتیں بیوہ طلاق یافتہ ہوتی ہیں، کال آتی ہے میرے پاس بھائی، وہ بتاتی ہے ہمیں ڈاکٹر خود کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا کوئی بوائے فرینڈ رکھو، شادی اگر کوئی نہیں کر رہا تو بوائے فرینڈ رکھو تو ریلیکس ہو جاؤ گی. میں کہتا ہوں بھائی ریلیکس نہیں ہوگی، اس سے آپ کی زندگی اور زیادہ جہنم بن جائے گی. نکاح کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. تو ڈاکٹر کے سے پہلے یہ بھی دیکھ لیا کرو کچھ اخلاقیات بھی جانتا ہے کہ نہیں جانتا. میں نہیں کہہ رہا سارے ایسے ہوتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام کس قسم کرسی میں، کس قسم کرسی میں جیل کی دھمکیاں. کوئی نفسیاتی ڈاکٹر ہوتا تو کیا کہتا بھائی؟
तो मशवरे देता कि यार जेल जाने से बेहतर है कि आप बुराई कर लो, क्या है। लेकिन जब जुलेखा ने 2 धमकियां दी है ना कि बदनाम भी करूंगी और जेल में भी, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से हाथ उठा के दुआ मांगी, रब्बि सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि, अल्लाह इस बदकारी और जिना से मुझे जेल की जिंदगी ज्यादा महबूब है। और अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, वइल्ला तस्रिफ अन्नी कैदहुन्ना अस्बु इलैहिन्ना, अल्लाह तूने अगर मुझे इनके फितने से ना बचाया तो मैं भी इनकी तरफ माइल हो जाऊंगा, व अकुम मिनल जाहिलीन, और मैं भी जहालत का काम कर बैठूंगा। इससे पता चलता है जिना इतनी खतरनाक जुर्म है कि इसमें अल्लाह की मदद अगर शामिल हाल ना हो तो इंसान को भटकने में कोई टाइम नहीं लगता। इसलिए जिना से बचने के लिए असबाब भी इख्तियार करो और अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआएं भी मांगा करो, अल्लाह हमें इस गंदी पलीद बीमारी से बचा, कि ये बहुत खतरनाक, बहुत अट्रैक्शन है इसके अंदर। समझते हो कि नहीं समझते? तो क्या हुआ, यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल की कोठरियों में डाल दिया गया, जेल में चले गए। तो कभी भी ऐसा नहीं हो यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल जाके निदामत हुई हो, भाई मैंने अपनी जिंदगी पे अपने पांव पे कुल्हाड़ा मार दिया, माज़ अल्लाह, देखो ऐश से भी गया और इज्जत भी लोगों में मेरी खराब कर दी और जेल की जिंदगी में मुझे डाल दिया। लेकिन अल्लाह ने कैसा इंतजाम किया यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए, कैसे बाइज्जत बरी किया है और बिल आखिर मिस्र का बादशाह बनाया। ये मेरी ये बात याद कर रख लो, अपनी डायरी में लिख लो कि जिस नौजवान को जिना का मौका मिला और कोई रुकावट नहीं थी, अल्लाह की खातिर उसने जिना छोड़ दिया ना, आप देखना अल्लाह सिर्फ आखिरत में नहीं दुनिया में उसको बहुत नवाजते हैं, दुनिया में बहुत नवाजते हैं। जिसको मौका मिला ना और उसने क्या किया, छोड़ दिया, सिर्फ किसके लिए, अल्लाह के। आखिरत तो बाद में होगी, दुनिया में उसकी बरकतें अपनी आंखों से देखेगा। करने वाले बहुत हैं, जब मौका मिलता है ऐसे मौके पे बचने वाले मार्केट में कम है। जो चीज मार्केट में शॉर्ट होती है वैल्यू उसकी ज्यादा होती है, जो मार्केट में ज्यादा होती है उसकी ज्यादा होती है, शॉर्ट चीजों। तो भाई बचने वाले शॉर्ट हैं तो अल्लाह की नजर में उनकी वैल्यू है। कुत्ते बिल्लों की तरह, गधे घोड़े, फीमेल से फिजिकल रिलेशन करने वाले वो मार्केट में बोलो बहुत। हमारे यहाँ आइसक्रीम पार्लर खुल गया था इधर, आइसक्रीम पार्लर ना, नाम आइसक्रीम पार्लर था, अंदर पता नहीं क्या क्या हो रहा था। हम देखते थे 13-13 साल की बच्चियां यूनिफॉर्म में डेट मारने आ रही हैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ। सुबह थोड़ी लोग घरों की बातें आके बताएंगे कि उन पे, वो हमें बताती हैं, लड़कियां बताती हैं प्रोफेसर ने मुझे इस्तेमाल किया, बॉयफ्रेंड ने मुझे इस्तेमाल किया। और ये भी वो लोग बताती हैं जिनके साथ गलत हुआ, इस्तेमाल करके नजरअंदाज कर दिया। क्या भंगी खाना खोला हुआ है यार। मैं नहीं कह रहा यूनिवर्सिटियों में मत पढ़ाओ अपने बच्चियों को या अपने लड़कों को नहीं पढ़ाओ, निगरानी तो करो ना कम से कम। माँ बाप ने ऐसे बच्चियों को मोबाइल देकर छोड़ दिया, वो यूनिवर्सिटी जा रही है, देख भी नहीं रहे कि जा भी रही है कि नहीं जा रही है, लड़का क्या कर रहा है यूनिवर्सिटी में, कोई निगरानी नहीं है। तो भाई आप पढ़ना जब है, तालीम तो जरूरी है, वरना बिल्कुल ही हम और जो जाएं उससे भी जाहिल के जाहिल रह जाएंगे। तो निगरानी तो करो ना अपनी बच्चियों की। यूनिवर्सिटी में कोई जवान लड़की है, कोई भाई जाए उसको पहुंचाने के लिए, उसकी निगरानी करे। बाप, ऐसे लोग मैं जानता हूं, बेटियां पढ़ाई के लिए जाती हैं, बाप जाता है, भाई जाता है, निगरानी कर रहा है, उसको समझाया हुआ है, बेटा किसी से तुम्हें दोस्ती लगाने की इजाजत नहीं है, रिजर्व रहना है सबसे, पूरी निगरानी करते हैं, मोबाइल कंट्रोल में है। ऐसे गधे घोड़ों की तरह बच्चियों को क्या किया हुआ है, आजाद, जाओ बेटा जो मर्जी करो। तो खू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अल्लाह कहते हैं अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। तो निगरानी करो अपनी बेटियों की, अपने बेटों की जो यूनिवर्सिटी जा रही हैं। मैं नहीं कह रहा बदगुमानी करो, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी अच्छी भी हैं, बचती हैं बुराइयों से, हॉस्टल में रह के भी बच जाती हैं। लेकिन भाई हम असबाब के मुकल्लफ हैं, हमें शरीयत ने हुक्म दिया है कि निगरानी बोलो करनी पड़ेगी। और लड़की की बर वक्त शादी कर दो, क्या कर दो, और फिर उसके शौहर को बोलो भाई ये तालीम जारी रखेगी, हम इसी बेस पे शादी कर रहे हैं, हमने तालीम इसे छुड़वानी नहीं है। फिर शौहर निगरानी करे, समझते हो कि नहीं समझते? तो बे निगरानी में बे लगाम छोड़ा हुआ, माँ बाप को इससे कोई गरज ही नहीं है। वो कहते हैं एजुकेशन चाहिए हमें, भले जो मर्जी करें। तो ठीक है भाई, तालीम याफ्ता बन जाएगी, खुद भी जहन्नम का ईंधन बनेगी और तुम्हें भी जहन्नम की आग में धकेलेगी। कुरान में कई जगह है कि जो मातहत लोग हैं वो अपने बड़ों का गिरबान पकड़ेंगे। अल्लाह तो आज हमें आग में डाल रहा है ना, लेकिन हमारे माँ बाप को भी डाल आग में, हमारे बड़ों को भी डाल। हम इनकी वजह से क्या हुए हैं, गुमराह हुए। हम तालीम के खिलाफ नहीं है, हम बेहयाई के खिलाफ हैं। समझते हो कि नहीं समझते हो? और अगर बच्ची को यूनिवर्सिटी में भेज ही दिया आपने बगैर निगरानी के, और कहीं आंकड़ा हो गया उसका, आंख में टक्का हो गया उसका, तो फिर उसको ये ऑप्शन दो कि घर में आके वो ये बता सके कि अब्बा मुझे फलां पसंद है। अब्बा को ना बताए, अम्मा को बता दे। फिर गैरत मत दिखाओ कि तुझे मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजा या रिश्ते तलाश करने के लिए भेजा है। ये गैरत मत दे। जहां मर्द और औरत होंगे, पसंद नापसंद बोलो होगी, ये नेचुरल है। शुक्र अदा करो वो आके तुम्हें कोई दोस्ती नहीं लगाई उसने, वो आके तुम्हें कह रही मैं शादी करना चाहती हूं। बोलो माशाल्लाह बेटी, तूने मेरा सर क्या कर दिया, फखर से बुलंद कर दिया। तूने छुपा के दोस्ती नहीं की, तूने मुझे बताया कि मुझे फला पसंद है, ठीक है हम फला को चेक करेंगे, उसको छुट्टा तो नहीं लगाता, कुछ चर्च तो नहीं पीता, दोस्त अब आपसे इंक्वायरी करेंगे, समझ में आ रहा है, फौरन क्या कर दो, शादी कर। रुखसती नहीं कर सकते, निकाह कर दो भाई। बाज़ दफा तो एक्चुअली वैसे टोपी ड्रामे तो चल रहे होते हैं ना, चल भाई तू एक्चुअली भी कर ले, तू निकाह कर दे। दोनों मियां बीवी हैं, भले जहां डेटे मारे यार, तो डेट मारने की उनको जरूरत है ही नहीं। बोलो भाई रुखसती हम तालीम मुकम्मल करने के बाद करेंगे, अभी क्या है, सारी दुनिया को पता है ये मियां बीवी है। वो अपने घर से आता है यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए, ये अपने घर से आती है, तो क्या जा रहा है इसमें? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी तो इसी तरह आ रहे होते हैं, तो मियां बीवी नहीं आ सकते? सारी दुनिया को पता है भाई ये क्या है, मियां बीवी है। तो आसान करो इसको मेरे भाई, बदकारी बहुत बुरी चीज है, अल्लाह नहीं छोड़ेगा। और यूनिवर्सिटियों में नशा बहुत आ रहा है। आइस पहले ये गंदे नालों में मिला करती थी चर्स, चर्सी बैठे होते थे गंदे कपड़ों में, गंदे नालों में। अब चर्स कहां मिल रही है? यूनिवर्सिटी। आप अपने बच्चे को चर्सी बनाना चाहते हो, आइस का नशे वाला बनाना चाहते हो, बेहतरीन यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन आप करा दें, समझ रहे? तो जानी भी बनेगा,
सब नहीं बनते, फिर मैं बार बार कहूं। और क्या चर्सी भी, बल्कि चर्च से ऊपर की चीजें पिया, वो चर्च बस तो भी छोटी मोटी चीज हो गई है। चर्च तो बड़ी यूनिवर्सिटी में कहते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी को बदनाम कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तो कहां से बस मैं बात को खत्म करता हूं, खुदा के लिए इस बेहयाई से क्या करो, तौबा। कोई गुनाह सोसाइटी में आम हो जाता है तो वो काबिल मुआफी नहीं रहता। लूत अलैहिस्सलाम की कौम में लड़कों से बदफेली आम हो गई थी, तो क्या अल्लाह ने इग्नोर कर दिया कि सब कर रहे हैं तो चलो रहने दो? ना ना ना, अल्लाह ने पूरी कौम को उठा के उल्टा करके पटक के हलाक कर दिया, तबाह कर दिया पूरी कौम को। इतना गजब। तो मैं बता रहा था यहाँ इसकी बॉलर खुला था, तो शुक्र है बंद हो गया। उस वक्त अंदाजा होता था, अबे भाई वहां करीब में ना एक वो उसकी दुकान है, गाड़ियों की मैकेनिक है, तो मेरी गाड़ी अक्सर मैं गाड़ी वहां लेके जाता, तो उनके साथ ही वो बड़े बेजार थे कि यार क्या ये चकला खुल गया हमारे। उस वक्त हैरान होता था, 13-13, 14-14 साल की लड़कियां यूनिफॉर्म में, स्कूल यूनिफॉर्म में लड़कों के साथ आ रही हैं अंदर। माँ बाप क्या समझ रहे हैं, कहां गई है हमारी बच्ची स्कूल? और 13 साल की बच्ची यार वो लड़के के साथ कहां आ रही है? ये उम्र है मोहब्बत की भूखी होती है औरत। माँ बाप जब शादी नहीं करते ना, तो उसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं? नेचर थोड़ी चेंज होती है, तो वो डेटे मार रही है। ऐसे भी केस देखने में आए कि बच्चे के साथ लड़की आ रही है, अपने बच्चे के साथ, छोटे बच्चे को गोद, बच्चे को बाहर किसी को पकड़ाया और खुद अंदर मुंह काला। हमें नहीं पता मुंह काला कर रही है क्या कर रही है, लेकिन बंद कमरे में दो मर्द और औरत क्या करेंगे जाके? तो क्या हाल है, यानी क्या आप सोचोगे? ये बात कर रहा हूं मैं 12-13 साल पुरानी। अब तो सोसाइटी बहुत ज्यादा एडवांस हो गई, अब तो ये खोने खांचों की जरूरत ही नहीं है। तो मेरे भाई, जिना करने वाले, मुंह काला करने वाले, गंद में मुंह मारने वाले गधे घोड़े गधियां बहुत हैं। हम पैगंबरों के तरीकों पे चलते हैं। पैगंबरों का काम क्या था? निकाह करना। निकाह में इंसान छुपाता नहीं है। निकाह से इंसान की सोसाइटी में इज्जत कम होने के बजाय, घर में नहीं रहती लेकिन बाहर बहरहाल इज्जत, लोग समझते हैं बड़ी इज्जत होगी, 4 बीवी होंगी, वो भी जाती है, लेकिन बहरहाल बेइज्जती भी होती है, लेकिन बहरहाल असल में क्या है? इज्जत है, ठीक है ना? औलाद मिलती है इंसान को, और अल्लाह भला करे माल में बरकत होती है। जिना से माल की बरकत खत्म, जानी के चेहरे पे फिटकार होती है, निकाह करने से चेहरे पे नूर आता है। जिना करना फिरौन, हामान और इन अय्याशों का तरीका है। निकाह करना मूसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत, सुलेमान अलैहिस्सलाम की सुन्नत, दाऊद अलैहिस्सलाम की सुन्नत। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में खाने को नहीं था, बीवियां कितनी थी? 9। शर्मिंदा हो गए, मर जाओ, डूब जाओ, यहां दफा हो जाओ यहां से। अगर गैरत होती ना, ये बात सुन के अब सब मर चुके होंगे, बेहोश हो चुके। खाने को रोटी नहीं है, बीवियां कितनी रखी हैं एट अ टाइम, ये बताने के लिए कि कसरत निकाह ये इस उम्मत का शिआर है। समझते हो? तो क्यों अपनी जान पे जुल्म कर रहे हो? ना करो आप, 4 एक ही करो। खवातीन भी सुन रही हैं बयान, गुस्सा होती हैं, मैं तो खवातीन ही के फायदे के लिए कह रहा हूं, लेकिन चलो। लेकिन जिना से मेरे भाई बचना पड़ेगा, और निकाह में अल्लाह पे तवक्कुल करना पड़ेगा। तो घरों में तिलावत का मामूल बनाए, डेली तिलावत हुआ करे। घर में हर वक्त मोबाइल चल रहे हैं, एलईडी पे व्लॉग चल रहे हैं, और वो प्रैंक चल रहे हैं, 24 घंटे यही काम है बच्चों का। घर में थोड़ा सा खवातीन पाबंद करें भाई, खुद भी रोजाना आधा पारा, 1 पारा, 15-20 मिनट तिलावत कर ली, कुछ सुबह शाम तस्बीह का मामूल बना लिया, कुछ जो है टूटा फूटा तहज्जुद का मामूल बना लिया। कुरान पूरे साल गुजर जाते हैं, कुरान देखने की तौफीक नहीं होती, और नफली रोजों का मामूल बनाए। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल